So, good morning students. How are you all? I hope all you are fine. In the previous video, I explained you about the acceleration due to gravity and a free fall. Okay. The acceleration due to gravity, it is denoted by g and its value is 9.8 meter per second square. This is acceleration due to gravity. Now, if you remember, in chapter number 1, motion, we have three equations of motions. What are these equations? V equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, and third one, v square equals to u square plus 2as. In these three equations of motions, we consider a equals to acceleration. Here a is acceleration. Now, in this chapter, these three equations are repeated, but we use g in place of a. Okay. Here a is acceleration, g is also acceleration, but it is due to gravity. So here these three equations are replaced by g in place of a. So here we will write v equals to u plus gt, s equals to ut plus half gt square, and v square equals to u square plus 2as. Now, in this video, we will solve some question based on these three equations of motions. Here these three questions. Now, before starting the numerical problem, let us consider some cases. Now, case number 1, when a body is falling vertically downwards. I am writing short. Vertically downwards. When a body falls vertically downwards, then its g considered to be positive. And if thrown upwards, if a body thrown vertically upwards, then its velocity, then its g is negative. Thrown vertically upward, then g equals to negative. Third, when a body is dropped from a height, freely from a height, then initial velocity is 0. Freely dropped from a height. Freely dropped from height. At u equals to 0. And at highest point, thrown vertically upwards, g equals to negative, and here v equals to 0. I hope these 4 points are clear to you. Let's again have a look in this. देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास ये 3 इक्वेशंस थी. नाउ इस चैप्टर में हम these 3 इक्वेशंस दे आर रिप्लेस्ड बाय. तो इस चैप्टर में ग्रेविटेशन चैप्टर में हम जो ए है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज रिप्लेस्ड बाय जी. यहाँ पे हम उसे जी यूज करेंगे. ठीक है. और ये 3 इक्वेशंस जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे. कंसिडर करने से पहले, इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमने चार कुछ पॉइंट्स है कि सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट हम किसी पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो जी पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि जो ग्रेविटी है उसका काम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना. तो हेंस जी इज कंसिडर टू पॉजिटिव. और थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर हम कोई चीज ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या अगेंस्ट ग्रेविटी हो जा रहा है. ग्रेविटी क्या करती है? खींचती है नीचे की तरफ, बट वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है. देन इन दिस केस जी इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू, और हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी. और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करा रहे हैं, ठीक है, फ्रीली फेंक रहे हैं, तो नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में फ्रीली ही फेंका जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को. तो यहाँ पे हम u इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर टू बी 0. ओके. आई होप these 4 points are clear to you. Also, the value of g is considered to be 9.8, and sometimes
क्वेश्चंस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी गिवन होती है। तो डिपेंडिंग अगर क्वेश्चंस में नहीं गिवन है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो हम 9.8 यूज करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। नाउ हियर दिस इज अ क्वेश्चन, a stone is released from a top of a tower of height 19.6 meter. Calculate final velocity just before touching the ground. ठीक है, तो हमें क्या है कि एक स्टोन को हमने एक टावर से फेंका है, टावर के टॉप से, जिसकी हाइट कितनी है 19.6 मीटर है। तो ग्राउंड में पहुंचने से पहले जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को क्या है, स्टोन को एक टॉप ऑफ द टावर से रिलीज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स u इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 9.8। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी that means small g equals to 9.8 meter per second square. We have to find the initial velocity, final velocity, ठीक है, that is v equals to, we have to find out height of the tower. That means here height को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस और हाइट दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल है। हाइट इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 19.6 मीटर, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कौन सा हमने फॉर्मूला यूज करना है, वी विल यूज हियर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, हमारे पास a इज रिप्लेस बाय g एंड हाइट इज रिप्लेस बाय h। पुटिंग द वैल्यूज, v स्क्वायर एज इट इज, u स्क्वायर की जगह 0 इंटू 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, ठीक है। दैट मीन्स द वैल्यू कम्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी v इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट अगेन वंस अगेन, ठीक है। एक स्टोन है जिसको किसी टावर के टॉप से रिलीज किया गया है, तो हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हम उसे क्या है बिना किसी ऊपर से जब हम नीचे फेंकेंगे यानी फ्री फॉल हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं, वो ग्रेविटी के कारण ऑटोमेटिकली नीचे यानी मूवमेंट होगा उसमें या मोशन होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ग्रेविटी की वैल्यू हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंडरस्टूड है, फाइनल वेलोसिटी में फाइंड आउट करनी है, और हाइट ऑफ द टावर हमें 19.6 मीटर गिवन है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिनमें इन तीन यही वैल्यूज यूज हो रही है, ठीक है। तो हमने निकाला कि हमें ये फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, इस फॉर्मूले का यूज करना है। सारी वैल्यूज डाल के हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 19.6 मीटर स्क्वायर। अब कैसे आता है एक बार फिर देख लेंगे, यहाँ पे देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू 19.6 इंटू 19.6, अगर हम 9.8 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19.6 आएगा, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 19.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि हमने v की वैल्यू निकाली है नॉट v स्क्वायर की, तो हेंस अंडर रूट से पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 19.6 मीटर स्क्वायर। I hope the question number 1 is clear to you. Now moving to the second question. Now this is second question. A stone is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. हमने एक पत्थर को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है, कितनी स्पीड से, 49 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो कोई ना कोई स्पीड होनी ही चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। फाइंड मैक्सिमम, हमें दो चीजें फाइंड करनी, पहले तो मैक्सिमम हाइट कि कितनी हाइट तक जो स्टोन है वो पहुंचेगा, और उस हाइट में पहुंचने के बाद वो क्या होगा, नीचे की तरफ वापस आना शुरू हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट। और दूसरा कितना टाइम, जो पत्थर है उसे कितना टाइम लगेगा, मैंने उसे ऊपर फेंका है फिर ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। तो टोटल हमें टाइम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल नोट डाउन, ठीक है। तो
क्या क्या हमें जो हमें गिवन है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या गिवन है, विद द वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स u इक्वल्स टू 49 मीटर पर सेकेंड, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, again 9.8, acceleration due to gravity, that means small g equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी, नो फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाली, हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू हो जाएगी यहाँ पे 0 एंड हाइट निकालनी है, हाइट h इक्वल्स टू क्या, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 क्यों होगी, क्योंकि क्या कहा था, जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। सपोज ये ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, जैसी वेलोसिटी 0 हुई वो वहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि एक पत्थर है उसे हमने ऊपर की तरफ फेंका है, अब उसे क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी हमने फेंका है, तो हमने यहाँ पे जो ग्रेविटी है g की वैल्यू है वो -9.8 यूज की, क्योंकि वो ऊपर की तरफ फेंका गया है अगेंस्ट द ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड गिवन है, मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, हमें क्या निकालना है, कहाँ पे निकालना है, मैक्सिमम हाइट पे, एंड एट मैक्सिमम हाइट द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। नाउ अगेन हम इसमें देखेंगे कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो उस फॉर्मूला हम डाल के फिर से निकाल देंगे। तो यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, here v square equals to 0 square, u equals to 49 plus 2 into -9.8 into h, तो ये वैल्यू आएगी हमारी h इक्वल्स टू 49 into 49 2 into 9.8। अब ये कैसे आई है, देखिए ये नेगेटिव है, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो h की वैल्यू 2 into 9.8, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जरूर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम पहले इसे काट देंगे। नॉर्मली अधिकतर देखिएगा जो वैल्यू कटेंगी वो 7 से कटी जाएंगी, ठीक है, 7 7 जा 49 और ये आएगा 7 1 जा 7 1 4, अगेन ये 7 से कट जाएगा 0.2, दैट मीन्स 490/4। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी ये आएगी हमारी अप्रोक्सीमेट 122.5 मीटर, इसकी वैल्यू आएगी 122.5 मीटर, तो इट विल बी द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हमारी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, 122.5 मीटर होगी, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, जितना ऊपर जाने में लगा है उतना ही हमारा क्या है कि कितना टोटल टाइम, कितना कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो सेम है, जितना टाइम हम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। सपोज यहाँ से मैंने ये ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन ए है, ये बी है, ए से बी में जितना टाइम लगेगा पहुंचने में, उसको नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक तरफ का टाइम निकालेंगे और उसको या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम टू सेम उसे ऐड कर लेंगे। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम। तो आप यहाँ पे चाहे तो यहीं पे आप लिख भी सकते हैं कि हमें टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, तो हमारे पास है हम यूज करते हैं जो हमें इजी पड़ेगा, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। हमने ये क्वेश्चन इसलिए यूज किया क्योंकि v की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, पर उसमें क्या है कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v की वैल्यू 0 है,
u की वैल्यू 49 है, माइनस 9.8 इंटू टी है। ठीक है, दैट मीन्स टी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 टी इक्वल्स टू 49 और टी इक्वल्स टू 49 अपॉन 9.8 और ये हो जाएगा 490 अपॉन 98 जो कि आ जाएगी 5 सेकेंड। तो दैट मीन्स जब हमने बी से कोई ऑब्जेक्ट ए पे पहुंचा तो कितने टाइम में पहुंचा? 5 सेकेंड में। तो दैट मीन्स जितने टाइम में ऊपर पहुंचा उतने ही टाइम में नीचे पहुंचेगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 सेकेंड। ठीक है, एज टोटल टाइम विल बी 5 + 5 10 सेकेंड। दैट मीन्स टोटल टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड + 5 सेकेंड इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ठीक है, आई होप दीज 3 क्वेश्चंस दे आर क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। और ये 2 क्वेश्चंस आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।